saying that that's the first time the attacks were initiated, but that's as far as my memory takes me. And then we looked at the works of the internal enemy. In fact, just the day before yesterday, when I was doing some research on the internet, I came across an article in Arabic, and it talks about one of these takfiri mullahs who exists in Kuwait. And he came out and he gave a lecture out. And in his lecture, the idea was to talk about the cartoon images that were published about our Prophet. And then halfway through, he starts attacking the Shias. And he starts congratulating those people who bombed the shrines and destroyed the qubba, or the dome of our 10th and 11th Imam. And he says, Allahumma al'anhum wal'an qaba'ibahum. Allahumma send your lanat on these people, that is us, the Shias, and on to those personalities whom they regard as dear, and on their qubbas, on their domes. This illiterate man didn't even think that the greatest personality or the most respected personality that the Shias regard is none other than the Prophet of Allah, Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. And the single most important dome that we regard as holy in our religion is none other than that green qubba that you see in Medina. Such hatred for Ali that they're willing to attack the Prophet of Islam himself. I regard these people as more dangerous than those Danish people who published those cartoons. May Allah curse him and his followers. Maulana Sadiq Hasan then told us about our own internal problem. The Shias who are trying to destroy ijtihad or the mujtahid, the idea of having a mujtahid. It takes the average man a minimum of 45 to 55 years of his life to become a mujtahid. We have had exceptions where they have become in 11 years and so on. But I'm talking about the average man. 45 years of their life to become a mujtahid. Me and you will retire after 30 years of work. These guys, 9 to 5, they would do as hard work as me and you would do. For 45 to 55 years of their life to become a mujtahid. And today, as Maulana said, we go and read a 50-page book and we start questioning these mujtahids. Yeah? These are the signs of Allah. These people are the signs of Allah on His earth. Al-ulama'u min sha'airillah. We talked about sha'airullah in our second lecture. It says the scholars are amongst the symbols of Allah subhanahu wa ta'ala. Our arguments and our ill thinking is nothing but our pride. Which leads me nicely onto our third topic, which was takabbur. And we looked at how Allah subhanahu wa ta'ala does not like to see this attribute in anyone but Himself. We looked at the great legacy that our Imams left us. And we looked at that everything that we cherish, everything that we're proud about in this world will be of no use to us at the time of our death. Because we will be resurrected as naked as the day you were born. We looked at on the day of judgment, all this wealth, all this status in this society will all be in vain. And then yesterday we talked about tawakkul, or trust in Allah subhanahu wa ta'ala. We looked at how we lack the most basic means of tawakkul, the most basic means of trusting Allah subhanahu wa ta'ala. And I gave the example of that 17-year-old sister. And that we should be taking a lesson from her, from what she did. I mean, what made a 17-year-old youth even think about Allah subhanahu wa ta'ala at that time? Let us roll the clock back and look at our time when we were 17. I remember when we were at college, the most important thing to us was, when is the next time we're going to Rackham's to buy that £50 Versace t-shirt? Or to buy that £90 Armani jeans? Or we were taking such a keen interest in our driving lessons, not for the sake of learning, but just so that we pass and then we can go around and show around in our £400 banger to our friends. Everything was telling us to twist away from Allah subhanahu wa ta'ala. And yet what this sister did was so great. Just like a brother put it yesterday, this was ijtihad in the true sense of the word. Jazakallah, for I could not have put it any better. I know that some of the things which I must have said over the last 4 nights must have hurt a lot of people. But the truth does hurt. And how could I not when I'm only a student of this guy? But as a speaker, you're faced with a really tough decision to make.
Do you go out and please the crowd who will raise you so high that you will feel like you're floating on air? But then 30 minutes later, when your lecture is finished, they will leave you and go to their homes, back to their normal lives. Or do you go out and try to please that Lord who is with you when you're sleeping, who is with you when you're awake, who is with you when you talk and walk and eat and drink? I chose the latter. And how could I not? When I had the example of this man who was banned from certain members for reciting about hijab, who goes around the world, he talks about death, he talks about Yawm al-Qiyamah, he talks about Imam Zamana, he talks about not shaving your beard because it's haram, he talks about the hijab. Such trust, such faith he has in Allah, that if any of us want to see a living example of tawakkul on Allah, look no further. And I'm not saying this to puff him up, because the last thing he needs is someone like me to puff him up. But just over a year ago, when we heard that Maulana Sadiq Hasan was coming to recite majlises here, some of us were sitting in anticipation for the day that we will be here to listen to his majlises. A year ago, I didn't even dream that I would be standing in front of you giving a lecture. A year ago, all that I was thinking is I'd like to touch this man. I'd like to shake his hand, to thank him, because maybe somewhere in my life, I listened to one of his lectures to talk about dowry, and maybe that's why it's here. So today, when I hear him mention my name in his lectures, it's a great honor for me. And today, when he mentions me and someone like me who's never done anything before, it is an absolute honor. And I said it in my second lecture when he walked in, and I'm saying it again today. It is my honor to be in the presence of a great scholar such as Sadiq Hasan. And I encourage you that inshallah from tomorrow, don't stop your children from coming to these lectures because there isn't an English lecture. No, bring them. And you tell them what was said, because these are lectures that are not worth missing. In any case, the topic for today inshallah is sabr, or patience and perseverance. I got it right this time. What is the significance of patience in our religion? Allah subhanahu wa ta'ala says in the ayah which I recited, Allah is with those who practice patience and perseverance. What more do you want than for Allah to be your companion? Subhanallah. We are told by our imams that iman, or faith, is divided in two folds. One is sabr, patience, and one is shukr, which is thankfulness. And Imam Hussein personified and he became the pinnacle of both sabr and shukr. That every time he was bringing a body back, he was thanking Allah subhanahu wa ta'ala, and he was exercising patience. That to the extent that when Mukhtar was capturing and punishing the perpetrators of this heinous crime of Karbala, he used to ask them, what did you think of Hussein? Or how did you see Hussein? They used to say, we've never saw anything like it before. For every time Hussein brought a body back, we only saw his nur increasing. The glow on his face was increasing. It is as if Hussein was rising level upon level upon level. It is as if Hussein was gaining a new lease of life every time he brought a body back. Allahu Akbar. Imam Hussein and Bibi Zainab exercised sabr to such a state that till the end of time they will become the pinnacle of sabr. If anyone wants to see sabr personified, look at Hussein or look at Zainab, and look no further. The second part of iman is shukr, thankfulness, being grateful to Allah. I will inshallah give you one example and I'll come back to my original topic, sabr. Nabi Isa, Jesus, asked Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, I want to see my neighbor in heaven. Allah says, fine, go to such and such place, you will see such and such lady of this description, that will be your neighbor. So Nabi Musa goes and he sees this ugly looking lady, blind eyes, her legs paralyzed, and she's just sitting there. All of a sudden he hears her say, "O Prophet of Allah, who are you looking for?" He says, "Who told you about me?" She said, "The same Lord that told you about me has told me about you." So he sits down and they start conversing. Nabi Isa realizes that this lady is thanking Allah every step of the way. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Isa is amazed. He turns around and he says, "Oh lady,
Normally, you thank Allah for something He has blessed you with. You are ugly. You have not got beauty to thank Him for. You haven't got eyes to thank Him for. You haven't got legs to thank Him for. What are you thanking Him for? This lady replied, "Oh Isa, you have just counted the bounties which I'm thanking Allah for." She said, "Oh Isa, if Allah had made me beautiful, I fear that because of my beauty I would have committed a sin. Oh Isa, had Allah given me eyes, I fear that because of these eyes I must have seen something that is sinful. Oh Isa, if Allah had given me legs, I fear that I might have walked to a place where there are sins taking place. I am thanking Allah for He has not given me these things, and He has blessed me with not committing sin because of these things, and hence bringing me closer to Allah. And oh Isa, what great honor do I want more than being your neighbor in heaven." This is one aspect of Iman. And the second aspect was sabr. Imam Ja'far as-Sadiq salawatullahi wa salamu alayhi says sabr is to faith or to Iman what the head is to the body. As just like the body would perish without the head, Iman would be finished without sabr. There will be no Iman. The Iman would disappear without sabr. Now there are three forms of sabr, we are told. Number one, sabr in regards to disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala, which is the greatest form of sabr, Imams tell us. The second type of sabr is sabr in the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. And I will inshallah explain. And the third type and final type of sabr is sabr at the time of affliction. The first type of sabr, patience at the time of disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. How? When your nafs, your soul or yourself is telling you, commit this guna. And you say, no, I will not do it because Allah is not going to like it. Today we see in the West, we have all the facilities available to us to commit sins openly. And no one's going to say anything to us. Today, when you say, no, I will not look at that lady who is now mahram to me, because Allah will not be happy with that. Today when you say, I will not listen to these songs because Allah will not be happy with it. Today when you say, I will not take my scarf off because Allah subhanahu wa ta'ala and my imams will not be happy with this deed. That is sabr in its most pinnacle form. I'll give you an example and I'll move on inshallah. There was a lady once, a Sayyid lady, whose husband died. She had a few small children. There came a time when she could not feed them. There was no food left in the house. They came to a stage where these children were crying in pain, in agony. And you know the heart of the mother, she could not bear it. So she decided to go and approach the wealthiest man or the only man in her town that could help her. This man owned an iron mill. He was an iron worker. Now this man was the only person she could turn to, because he was the only person who had stored the grains and the kind of things, the foods that they used to use in those days. So she goes to him, she pleads. She says, please give me or lend me some food so I can go and feed my children. She goes to him and he says, he starts thinking to himself, a thought comes to him. This is my time. This is my chance to commit or to satisfy my desires. So he puts an offer on the table. He says, I will help you if you accept to commit this vicious sin with me. She gets scared. She says, no, I can't do that. She goes back home. After a while, she sees her children again, and they're crying, and they're weeping, and the pain and the agony that they're going through, and she could not take it. She goes back to this man, she pleads. She says, please give me some food. My children will die. He puts the same offer on the table again. She says, no, I cannot do it. This time when she goes back home, she sits down. She says, oh Allah, you know my problem. You know what I'm facing. I refer this case to you. You will help me. And then she turns around and she sees her children again in agony and in pain. This time she goes around to this man and she says, okay, just give me some food. I accept your demands, but on one condition, that if we're going to commit a sin anyway, then take me to a place where no one can see us. The man said, fine. So he takes us to a place where they thought there is no one looking. And this lady is shivering because committing a guna to someone who is not used to it is a state of shivering. And she says to him, oh man, you have not fulfilled my condition. Thank you.
And he says, how? Who is looking at us here? She says, my Allah is looking upon us. Upon hearing this man is shaken. He thinks to himself, if this lady who is about to be oppressed is thinking of Allah subhanahu wa ta'ala at this time, how can I be a man who is about to oppress her? So I am the superior one in this situation. How can I forget about Allah? And he turns around and he apologizes to this lady. And he gives us all the food that she needed. Look how Allah has rewarded both of them. This lady, she put her tawakkul, she put her trust into Allah subhanahu wa ta'ala. Allah said, I will not fail you. He gave her what she wanted in the first place. This man stopped his hand from committing that sin. Allah subhanahu wa ta'ala was so pleased. This man was an iron worker. That people say that when he used to work with iron and his hand would touch the fire, the hand would not burn from the fire. Subhanallah. The second type of sabr is patience at the time of obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. And in obedience of Allah subhanahu wa ta'ala, how? Allah subhanahu wa ta'ala has made Hajj compulsory on us. He has made khums and zakat and so on, and these things compulsory on us. One day you decide, I will do Hajj this year. And so you start saving your money for Hajj. Once you've saved an amount, yourself tells you, this is the exact money I need to do that, to build that extension in the house. This is the same amount of money that I need to upgrade my car to a new car. And when you say, no, I will do Hajj because Allah has made it obligatory on anyone who has the means, who has never done Hajj and he has the means to do Hajj. If you have the money, if you have the means and you are not doing Hajj, then that is haram upon you. For I will do Hajj this year and next year I will fulfill the rest of the needs. That is sabr against your soul in the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. And the final type of sabr is patience at the time of afflictions. When you go through various problems in your life and the various tests that Allah subhanahu wa ta'ala puts you through. And what could be a greater example than the sabr of that Imam Ali ibn Abi Talib that Imam showed after the death of the Prophet. Yesterday Maulana Sadiq Hassan recited about Ghadir. The Prophet of Islam did not ask anything of his ummah. He said, I don't want anything from you for the stones which were thrown on me. I do not want anything from you for the injuries which I took. I do not want anything from you for the insults which I bore. All I ask you is to love and to respect my Ahlul Bayt. And then to make life simpler, in mid of afternoon, on the day of Ghadir, he gathers everyone, 120,000 Muslims. He calls those people who had gone front. He calls them back and he waited till the people who were left behind came and joined them. He then told them, take off the saddles of your camels. He built the mimbar of saddles and then he stood on the mimbar. He took Ali's hand and he says, Man kuntu mawla, fahada aliyum mawla. Whomsoever's mawla is I. Ali is their mawla. He did not say, if you consider me your mawla, then Ali is your mawla. Why? Because the historians tomorrow would write that man died, so he's not my mawla. Yeah? He did not say, if the Muslims considered me their mawla, then Ali is their mawla. No, he said, whomsoever considered me as their mawla. Why did the Prophet say that? The Quran tells us that Allah subhanahu wa ta'ala in Alamud Dar, when we were in the most elementary form of our creation, when we were in the form of atoms, Allah posed a question to the people of Adam. He said, Alastu bi rabbikum? Am I not your only Lord? Am I not the only God? Everyone said yes. Later when people asked the Prophet, O Prophet of Allah, why are you regarded as the highest in the prophets? He said, because when Allah asked that question, I was the first person to say Bala. I was the first person to say, yes, you are. And then the Prophet goes on and says, if the people knew when Ali received the title of Amirul Mu'mineen, they will not quarrel for him. They asked him when. He said, when Allah asked all the people, Alastu bi rabbikum, and after everyone had answered, yes, you are, he then turned to the prophets of Allah and he said, Alastu bi rabbikum, wa alaysa hadha Muhammadun Rasulullah, wa alaysa hadha Aliyun Amirul Mu'mineen. Qalu bala. Allah's Prophet said that Allah turned to the prophets and he said, am I not your only Lord? Is this not Muhammad Rasulullah? Is this not Ali Amirul Mu'mineen? They all said yes. So when the Prophet of Allah was saying, Man kuntu mawla, fahada aliyum mawla, he was meaning that if Adam thought that I was his mawla, then Ali is his mawla. If I am the mawla of Nuh, then Ali is his mawla. If I am the mawla of Ibrahim, then Ali is his mawla. If I am the mawla of Isa, Musa, Yunus, Idris, then Ali is his mawla.
And yet, 120,000 Muslims in the mid of afternoon, when the sun was burning their heads, they gave allegiance to Ali ibn Abi Talib, that you are the Mawla. And then a few days later, the Prophet died. They all forgot. That is truly the act of shaitan. They are truly the hizb of shaitan. And Allah says, Allah, inna hizb al-shaytani humul khasirun. Defeated is the group of shaitan. This is why when people used to come to Imam Ali and they used to say, oh Ali, look how great these jobs these guys have done. They've conquered so many countries. They've spread Islam so far. He used to say, Wallahi, they have just delayed my work by 1,000 years. Ali ibn Abi Talib had a mission. So today, if Islam 1,000 years after the death of the Prophet reached to Spain, that is not greatness. Because at the time in the leadership of Imam Ali, every inch of earth would have been already a Muslim. And we wouldn't have been fighting against religion versus religion. We would have been talking about new ways of upholding our religion. If 1,000 years after the death of the Prophet, man invents electricity, which Imam Ali in Nahjul Balagha says to his Sahabis, that I can tell you how to bring light into your house from this water, then it is not the fault of Ali, is it? It's the fault of the people who took that Khilafat from Ali, who ruined his chance. Ali did not give a damn about the Khilafat. It means nothing to him. Ali was sent with a mission to spread the religion of Muhammad after the death of Muhammad. And he felt that these guys were hurdles in his way. And hurdles they were. He says that it is as if a bone is being shoved down my throat. I sit in my house, they come and burn my house. They injure my wife, they kill my son. I stand up for my rights, they will say Ali chose bloodshed. He decided to divide the ummah. I am stuck, he said. And that is where Zainab inherits her sabr, that the poet says, بأبي التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها. She is the lady who inherited the calamities from her mother Fatima and fought them with the patience and the perseverance of her father Ali. أيسوقها زجر بضرب موطنها والشمر يعدوها بسب أبيها. Was it not enough for that child to be hit on the cheeks, that Shimr had to add insult to injury by cursing her father in front of her? When people used to ask Imam Sajjad about the worst type of calamities which they faced, he used to reply, Ash-Sham, Ash-Sham, Ash-Sham. Maybe Imam Sajjad remembered that when they were brought before Yazid, he asked him, who are you? He replied, I am Ali ibn al-Husayn. Yazid turned around and said, I thought Allah had killed Ali ibn al-Husayn in Karbala. Imam Zain al-Abidin replied to him, no Yazid, Allah has not given us anything but that is which is good for us, and that was Aliyun al-Akbar. I am the eldest Ali. Yazid said, do you dare to reply back to me? Kill him. Zainab stood up and she said, you cannot touch him while I am alive. Yazid said, kill them both. Fizza stood up and said, you cannot touch Zainab for as long as Fizza is alive. Yazid said, kill them all. And then Fizza turns around to the Abyssinian delegation and she says, you will wait and watch while they kill the heir to your throne. And they stood up, they took the daggers out of they took the swords out, and they said, today Yazid, if anyone touches her, there will be bloodshed. Salams be on that Zainab who must have remembered Abbas at that time. Yazid then went on the pulpit and he started addressing the people. He spoke foully about the Ahlul Bayt. After he finished, Imam Zain al-Abidin turns around to him and he says, Yazid, can I go on the pulpit? Yazid said no. The people insisted, Yazid, let him go on the pulpit. What can he do? His hands are tied in his neck. There is a ball of steel
stuck to his feet. Yazid let him go. Imam Zainul Abidin comes on the mimbar. He says, Man arafani faqad arafani. Ana ibn Makkah wa Mina. Ana ibn man sallat alayhi malaikatus sama. Whomsoever knows me, they know me. And those who do not know me, I am the son of Mina. I am the son of Kaaba. I am the son of Medina. I am the son upon whom the angels prayed day and night. People came to Yazid and they said, Yazid, you have to stop him now, otherwise you will have a revolution on your hands. So Yazid sends the muazzin. He says, go and do azan. It wasn't time for azan. And the muazzin starts, Allahu Akbar. Allah is definitely most great. Imam replies, Ashhadu an la ilaha illallah. There is no God but Allah. Imam replies, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Imam turns to Yazid and he asks, Oh Yazid, tell me, was Muhammad your grandfather or my grandfather? If you say he was your grandfather, you have lied. And if you say he was my grandfather, then tell me, Yazid, why have you killed his grandson? Why have you brought his women and children prisoners to Sham? Ala la'natullahi ala al-qawmi al-zalimin. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها يا الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لموتانا. اللهم اغفر للأحياء والأموات. اللهم اغفر لوالدينا. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين قاصم الجبارين مبين الظالمين وهو رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين بالقاسم محمد وآله وعطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين سيما للإمام المنتظر والحجة الثانية عجل اللهم له الفرج واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. सूरह निसा की आयत और सूरह अहज़ाब की वो आयत जो ज़ैद बिन हारिसा के वाक़े में नाजिल हुई है वेस्ट में कि जहाँ फ्रीडम के नाम पर हर चीज़ की परमिशन रिज़ा और इजाज़त दी जाती है। ख़ास तौर पे कुरान की ये दो आयतें हैं जिसे बार बार आदमी को रिपीट करना है, इसके मैसेज को समझना है, इसके मैसेज को अपनी नेक्स्ट जनरेशन को शिफ्ट करना या ट्रांसफ़र करना है। लेकिन इससे पहले एक बात मुझे कहना थी, अब मैं ज़रा सा पज़ल्ड हूँ कि उसे कहूँ कि ना कहूँ। और वह बात थी हमारे मोहतरम ब्रदर शेख हसनैन अब्दुल्ला के हवाले से। अब उन्होंने अपने लेक्चर में मेरा जिक्र इस तरह कर दिया कि लोग ये ना समझें कि कोई प्लानिंग हुई थी। पहले वो हमारी तारीफ़ करें और फिर हम पलट के उनकी तारीफ़ करें। लेकिन ये दो ख़ास बातें मुझे इस इंग्लिश लेक्चर के हवाले से कहना थी, वो ये कि नंबर एक,
मैं बहुत ही ज़्यादा यानी स्ट्रांगली इस फेवर में हूँ कि अब वो टाइम आ गया है अपने बच्चों की वजह से, ये हमारे लेक्चर्स, ये हमारी मजालिसें, ये हमारी आज़ादारी, ये हमारे दरसो दुरूस इंग्लिश में हों। ऑल्दो हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा आग़ा सिस्तानी की वो एडवाइस ख़ास तौर पर खुजा शिया इस्नाअशरी कम्युनिटी लिविंग इन द यूके, कि अपने कल्चर को और अपनी लैंग्वेज को कभी भुलाइएगा नहीं। लेकिन ये नहीं कहा कि नई लैंग्वेज ना सीखिएगा, वो अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करते हुए। मैं बहुत ज़्यादा इस फेवर में हमेशा से था। यानी मुझे याद है कि 20 साल पहले तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ चल रहा था, डिबेट हो रही थी पूरे यूके में, इंग्लिश हो कि ना हो, इंग्लिश हो कि इंग्लिश ना हो। लेकिन उस वक्त से इसके फेवर में होने के बावजूद जो इसका एक रिजल्ट मैंने देखा या एक खराबी देखी, वो ये कि इंग्लिश स्पीकर्स नॉर्मली, ये नॉर्मली की बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, रिलीजन की इतनी नॉलेज रखते नहीं हैं। और पता नहीं क्यों, वाई, वो जब स्टार्ट करते हैं तो आज़ादारी के अगेंस्ट बातचीत से स्टार्ट करते हैं। हमारे मज़हब में इतनी सारी चीज़ें बयान करने की, लेकिन नॉर्मली इंग्लिश स्पीकर्स न खुद आज़ादारी पे इतना बिलीव करते हैं। चलें, वो तो आदमी का अपना बिलीव है, क़यामत के दिन जब वो मजलूम आका की दुखियारी माँ के सामने जाएंगे तो वो जाने और शहजादी फातिमा। लेकिन फिर वो मेंबर से या डाइस से या स्टेज से यंगस्टर को बहुत ज़्यादा मिसगाइड करते हैं। और कई जगहों पर, यूके के अंदर कई जगहों पर एक प्रॉब्लम यह है कि सेंटर में इंग्लिश और उर्दू को सेपरेट किया जाता है। वो भी अपनी जगह सही है टाइम बचाने के लिए। अब देखिए, जो बच्चे आके बैठ गए थे कितने बोर हो रहे हैं। तो ये टाइम बचाने के लिए साइमल्टेनियसली जो 2 लेक्चर होते हैं, तो वहाँ तो बिल्कुल पता नहीं चलता कि इंग्लिश में हमारे बच्चों को क्या दिया जा रहा है। मैंने कहा नो डाउट बहुत अच्छे अच्छे भी स्पीकर हैं, लेकिन नॉर्मली पता नहीं क्यों आज़ादारी के अगेंस्ट और आज़ादारी के अगेंस्ट बात भी की जाती है, और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता रहता। तो मोहतरम बरादर हसनैन अब्दुल्ला की स्पीचेस इस एतबार से मुझे ज़्यादा ही पसंद आई कि न सिर्फ ये कि अगेंस्ट आज़ादारी कोई बात नहीं थी, बल्कि आज़ादारी पे एम्फेसाइज किया जा रहा है। और दूसरी एक चीज़ ये कि नॉर्मली इंग्लिश लेक्चरर्स को मैंने देखा कि वो ग्रेजुअली एक एक चीज़ को डिनाई करते करते फिर बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं। इसीलिए मैंने कल एक रिक्वेस्ट की थी और इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को ऑनर किया। यानी यजीद के बारे में कहा जाता कि पहले उसने करबला में आका हुसैन पे अटैक किया, उसके बाद ज़रा सा उसमें करेज आया या हिम्मत बढ़ी तो नेक्स्ट ईयर उसने मदीना मुनव्वरा पे अटैक करके उस रोज़ा रसूल पे को डिमोलिश किया, जो ब्रदर हसनैन अब्दुल्ला के लेक्चर के बिल्कुल शुरू में आया था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोम अकॉर्डिंग टू शिया बिलीफ। और उसके बाद फिर उसका नेक्स्ट और लास्ट टारगेट खाने काबा था। ये भी कितनी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग बात कहिए कि खाने काबा पे जब काफिर ने अटैक किया, जो कल के ब्रदर हसनैन अब्दुल्ला के लेक्चर में था अब रहा, तो अल्लाह ने खाने काबा को प्रोटेक्ट किया। और जब सो कॉल्ड मुसलमान ने 2 मरतबा खाने खुदा पे अटैक हो चुका, जिसके अंदर खाने खुदा की वॉल्स को डिमोलिश किया जा चुका, तो न्यू काबा है जो हमारे सामने बिल्ट है, और दोनों मरतबा ये काम मुसलमानों ने किया। लेकिन मेरा टॉपिक तारीख़ काबा नहीं है, मेरा टॉपिक ये कि अगर उर्दू में तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट किस्म की सेइंग है, गुरबा कुश्तन रोज़े अव्वल, बिल्ली को पहले दिन मारना पड़ता। अंग्रेज़ी में निप द इवल इन द बट टाइप की भी कोई प्रोवर्ब है या सेइंग है, उसका यही मफहूम है। अंग्रेज़ी में गालिबन इस किस्म की भी कोई सेइंग, क्या स्टेज इन द टाइम सेव्स 9,
कि टाइम के ऊपर अगर हम एक काम कर ले तो बाद के बड़े प्रॉब्लम से बच जाते हैं। जिन साहब ने, ऐसे कई लोग हैं लेकिन जो मोस्ट फेमस हैं, स्टार्ट किया था मरजइयत के अगेंस्ट बात करने से, गर्चे उसके अंदर थोड़ा सा उनका अपना भी प्रॉब्लम आ गया था कि एक मर्जे ने मना किया कि ये आदमी की नॉलेज इतनी लिमिटेड है तो इसको मेंबर पे कैसे जाने देंगे, तो लोगों को मिसगाइड कर देगा। अच्छा, वो पर्टिकुलर उनके बारे में नहीं है, यानी उनके बारे में तो है, लेकिन उसका रीजन ये था कि इतनी लिमिटेड नॉलेज के साथ हम कैसे रिजा दे सकते हैं किसी को कि मेंबर पे चला जाए। तो ये एक फार्मूला, एक प्रिंसिपल, एक उसूल बन रहा है। देखिए, ईस्ट अफ्रीका में भी थे, लेकिन जितनी नॉलेज है उतनी बात करते थे और इसीलिए ज्यादातर किताब से पढ़ा करते थे, जो इसमें लिखा है वही पढ़ रहे हैं। और बहुत सारे सिर्फ गम का बयान पढ़ते थे कि जब नॉलेज नहीं है तो हमको ये राइट ही नहीं है कि हम पब्लिक को एड्रेस करें। तो आयतुल्लाह सिस्तानी ने अगर किसी ऑरेटर को रोका है तो उनका कोई पर्सनल उससे कोई कन्फ्लिक्ट या इख्तिलाफ नहीं था, पहले जज किया कि नॉलेज क्या। मेंबर जो है हमारे यहाँ नॉलेज देने का एक बहुत बड़ा जरिया। अब फिर एक फारसी मेरे जहन में फारसी मुहावरा आ रहा, देखिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी, जो उर्दू नहीं समझते मैं उनको फारसी सुनाता हूँ। जो कुफर अस काबा बरखीजत कुजा मांद मुसलमानी, अगर काबा ही सेंटर बन जाए कुफर का तो इस्लाम कहाँ से मिलेगा। तो ये मेंबर वही पोजीशन रखता। तो पहले देखा, जज किया कि नॉलेज क्या है जो आदमी मेंबर पे जाके पब्लिक को एड्रेस करके उनको एजुकेट कर रहा। जब देखा कि इतनी लिमिटेड नॉलेज और हाउ डेंजरस दिस लिमिटेड नॉलेज, तब मना किया। लेकिन हमारे लिए भी इसके अंदर उन्होंने एक गाइडेंस दे दी कि कोई पार्टिकुलर आदमी ही नहीं, जहां भी लिमिटेड नॉलेज, तो उस लिमिटेड नॉलेज का नुकसान ये होता कि जैसे मैंने बात की कि मरजइयत से स्टार्ट हुआ और आखिर में गदीर खुम के वाक़े का डिनाई किया गया, जो स्पेशली मैंने रिक्वेस्ट की थी कि बच्चों को पता चले गदीर क्या। अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू मजालिस में गदीर का जिक्र बहुत होता है, लेकिन इंग्लिश में गदीर का इतना जिक्र होता ही नहीं। और दूसरी जानिब से गदीर का डिनाइल कि गदीर का वाक़या ही नहीं हुआ, यह हुआ तो मौला की मीनिंग वो है ही नहीं जो शिया बनाते हैं। ये शिया स्कॉलर और द सेम पर्सन कह रहा है, बल्कि शायद बुक भी लिख दी। खैर, ये तो इतना भी ज़रूरी नहीं है किसी एक पर्सन के बारे में बात करना कि मजलिस का टाइम उसको दे दिया जाए। लेकिन ये जो दो बहुत बड़ी खराबियां देखी कि टाइम पर पब्लिक होशियार नहीं होती। हर चीज़, इन शॉर्ट कह के अपने टॉपिक पे आऊं, हर चीज़ मर्जी की जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। उसने आपको एक गाइडलाइन दे दी है, उस गाइडलाइन को आप फॉलो करेंगे और जिसका नाम भी वहां नहीं पहुंचा लेकिन आप जानते हैं, उसके अंदर आपको खुद केयरफुल रहना। इंग्लिश स्पीकर्स बहुत ही ज़रूरी हैं हमारी कौम के लिए। ये हमारे बच्चे, इनको कहाँ से नॉलेज मिलेगी। देखिए कितने एहतराम से ये मेंबर पे बैठे, मेंबर के सामने बैठे, एक लफ्ज़ नहीं समझ रहे इनकी। बहरहाल ये मेंबर की रिस्पेक्ट। और यहाँ तो बैठे भी हैं लेस्टर जमात में, बाकी जमातों में तो बैठते भी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चूंकि ये इतनी रिस्पेक्ट के साथ सफ़े अज़ा पे बैठे हैं तो हम इसको मिस यूज़ करें और इन्हें कोई नॉलेज ना दे। ज़रूरी और बहुत ही ज़रूरी, लेकिन अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करते हुए और यह ख्याल करते हुए कि सही नॉलेज दी जाए। हाँ, अगर सही नॉलेज नहीं मिल रही तो कुछ ना दो। एक आदमी अगर भूखा है तो खाना दे दो ना, लेकिन अगर आपके पास इस वक्त उसको फीड करने के लिए रोटी नहीं है तो भूखा रखो लेकिन जहर मत दो। ये जो हमारे यहाँ बात जगह ये आया कि जी इंग्लिश लेक्चर तो होना चाहिए वरना बच्चे बहुत बोर होते हैं, कोई सही नहीं है तो गलत को लेके आ जाओ ताकि वो गैप ना होने पाए। तो ये वही बात है ना कि कोई भूखा है, आप इस वक्त उसे नहीं दे सकते रोटी, तो आपने उसको जहर दे दिया कि भाई पेट तो भरना है, जहर से भर लो, उससे फाका बेहतर होता है। खैर, अब शायद ये लेस्टर का इतना प्रॉब्लम है नहीं, ये उन जगहों का प्रॉब्लम है जहाँ जैसा ब्रदर हुसैन अब्दुल्ला ने कहा कि मैं ऑलरेडी बैंड हूँ, तो वहाँ बैंड हूँ तो वहाँ ये बात कहना है, लेकिन वहाँ मैं कह नहीं सकता हूँ। आपसे कह सकता हूँ, तो आप इस बात का ख्याल रखिए। और कल की जो मजलिस थी ये उसी से रिलेटेड उसका एक मैसेज वो ये कि किसी भी इन्वायरमेंट को चेंज करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आदमी के पास बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज, कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, ये कुरान कह रहा है सूरह बकरा में। बहुत ही छोटा सा एक ग्रुप
बड़ी बड़ी आर्मीज को, बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन को शिकस्त दे सकता, अल्लाह के इज़्न और अल्लाह की इजाजत से बहुत ही स्मॉल स्केल से काम शुरू किया जाए। मेरे मजलूम आका सज्जाद ने और मेरी मजलूमा शहजादी सानिया ज़हरा ज़ैनब कुबरा ने जो शाम को चेंज किया, कौन से रिसोर्सेस, कितने कंप्यूटर उनके पास लगे हुए थे जिंदान शाम में जिससे वो माशरे को चेंज कर रहे हैं, कितनी बुक्स वो वहां पे प्रिंट कर रहे थे। नहीं, जिसके दोनों हाथ गर्दन से बंधे हुए, और जो मसाइब में अभी पढ़ा गया, मैं उसी से फजाइल का मैसेज लेके आगे बढ़ रहा हूं कि दोनों हाथ गर्दन से बंधे सानिया ज़हरा, और मेरे मजलूम आका के गले में तौक है, हाथों में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी, लेकिन इसमें भी प्रोपिगेशन और तबलीग चल रही। तबलीग एक ऐसी चीज कि इसके लिए कोई बहुत बड़ा सेंटर भी नहीं चाहिए, 10-12 कंप्यूटर लगना यह भी जरूरी नहीं, कोई अपनी वेबसाइट होना यह भी जरूरी नहीं। तबलीग एक ऐसा काम है कि बहुत ही स्मॉल स्केल से हो सकता। और स्पेशली देखिए, ये थी बात, स्पेशली अगर आप सबको चेंज ना करें इतने स्मॉल स्केल से, कोई आपके पास रिसोर्स नहीं, ना ह्यूमन रिसोर्स है, ना मटेरियल रिसोर्स है, कुछ भी नहीं, एटलीस्ट अपने घर में तो तबलीग हो सकती है ना, अपनी औलाद, अपने घर वाले, अपने फैमिली मेंबर्स। शब जुमा कल, टुमारो विल बी शब जुमा, लेकिन जो शब जुमा की रिवायत तो नहीं, एक छोटी सी स्टोरी, मैं शब जुमा पढ़ता हूं, आज मैं पढ़ के अपनी बात आगे बढ़ा रहा हूं, बहुत ही फेमस है। आजकल तो इतना ज्यादा इसे ईसाले सवाब की मजलिस यानी जियारत या 40वें की मजलिस में पढ़ा जाता कि खाली एक हिंट दे दूंगा, पूरा वाकया आपके जहन में आ जाएगा। और वो ये कि एक यंग कपल बनी इसराइल में रहता, बहुत ही हार्ड टाइम वो गुजार रहे हैं, और उसके अंदर फिर ये हुआ कि शौहर का इंतकाल हो गया। अब ये औरत विडो अकेली रह गई, छोटा सा इसका बच्चा है 5-6 साल का, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और ये जमाना एटलीस्ट 3000 ईयर्स अगो, 1400 साल भी नहीं है, बनी इसराइल की स्टोरी। चुनाचे कोई ऐसा सिस्टम भी, वेलफेयर सिस्टम नहीं। कितनी मुश्किल से अब ये बेवा औरत गुजारा करती है, इसी का दिल जानता। लेकिन इसे एक मैसेज पता, जो शब जुमा का मैसेज है, और मैं हर साल जहां पर भी हूं डिटेल में ना सही तो एक इशारा जरूर करता हूं, लेकिन मैंने कहा कि एक दिन एडवांस में ये बात हो गई, और वो ये कि इसे ये मालूम है कि बहरहाल इस दुनिया में 2 रोटियां खाते हैं, एक खाने से गुजारा हो जाएगा, लेकिन मेरा शौहर जहां पे गया वहां पे कोई उसकी हेल्प करने वाला नहीं है सिवाय मेरे। तो घर में ऑलरेडी समझिए फाके हैं, बड़ी मुश्किल से मीट द बोथ एंड्स का जो मुहावरा है कि बड़ी मुश्किल से हैंड टू माउथ ये लोग हैं, मगर फिर भी वो थोड़ा थोड़ा एक एक पेनी बचाते हैं। और शब जुमा एक बिल्कुल नॉर्मल सा, बल्कि बिलो नॉर्मल मील तैयार करके मस्जिद में भिजवा देती, क्योंकि पहले जमाने में मस्जिद के अंदर वो लोग आके स्टे करते थे जिनका कोई घर नहीं होता था, ज्यादातर गरीब, यानी गरीब पुअर के मीनिंग में नहीं, गरीबुल गुरबा, मुसाफिर, होटल तो थे नहीं। वहां जाके, क्योंकि उसको पता कि आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू सेंड द मील एवरी डे, रोजाना तो नहीं भेज सकती, तो अब वीक में कोई एक दिन है, और शब जुमा की चैरिटी से ज्यादा सवाब किसी चीज में नहीं, बल्कि शब जुमा की हर इबादत का सवाब ज्यादा। अलबत्ता वेस्ट में प्रॉब्लम होता, आप जोक नहीं समझिएगा, खैर यूके में तो आपका सिस्टम सही है, लेकिन ये जोक नहीं है। ये किसी आदमी ने मुझसे डायरेक्ट फेस टू फेस कहा कि मौलाना ये हमने एक दफा चेक किया कैलेंडर, इमामों की शहादत मंडे को हुई है, सारे इमाम जितने मासूम है मंडे को शहीद हुए। काश सैटरडे या संडे को शहीद हुआ होता तो हमारे लिए वीकेंड में उनकी मजलिस रखना कितना आसान होता। अगर वो शहादत के लिए भी चूज करते वो दिन जो हमारे एरिया के अंदर वीकेंड कहलाता है, संडे को शहीद होते तो कितनी आसानी हो जाती, आज कितने प्रॉब्लम हो जाते। तो अब ये जब इमाम तक से ये डिमांड की जा रही है कि मौला अगर आपको शहीद ही होना है तो संडे को क्यों शहीद ना हुए, ताकि हमें किसी प्रॉब्लम के बगैर मजलिस में आने का चांस मिल जाए।
तो शब जुमा का कंसेप्ट ही निकल गया है यूरोप की अक्सर जगहों पर। लेकिन बहरहाल मालूम है हर एक को कि इसका सवाब ज्यादा है, चुनाचे शब जुमा। मुझे खाली एक हिंट देना था, हिंट इतनी लंबी हो गई। तो इन शॉर्ट हर शब जुमा ये बच्चा 6 साल का बच्चा ये खाना लेके मील लेके मस्जिद में जाता। माँ कहती है कि वहां पे जो मुसाफिर नजर आए जिसका यहाँ कोई ना हो जो भूखा उसको दे के आ जाना। खैर बच्चे ही काम करते हैं। जैसे कल एक बच्चा चैरिटी जमा कर रहा था, तो खुलासा ये है कि 10 वीक 20 वीक 40 वीक 50 वीक, क्यों इतना लंबा हो रहा है, मैं इसको शॉर्ट करना चाह रहा हूं वाकये को। एक रात को एक शब जुमा बिल्कुल अपने रूटीन के हिसाब से उसने वो एक मील भिजवा दिया, मस्जिद में आई, नमाज शब वगैरह पढ़ी, सो गई। जब सोई तो उसने ख्वाब देखा, एक ड्रीम, एक सपना। क्या देखा कि मेरा शौहर आ रहा। मरहूम ख्वाब में भी आते हैं और मरहूम हर शब जुमा वैसे भी आते हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि असल टॉपिक भी नहीं है और आज शब जुमा भी नहीं। देखा कि मेरा शौहर, और वो कह रहा है कि मैं खुदा से, अल्लाह से 2-4 मिनट की परमिशन लेके आया हूं ताकि तुम्हें थैंक यू कह दूं। मुझे मालूम था जब मैं मरा, मुझे मालूम था मैंने अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं छोड़ा। चुनाचे मैं कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि तुम मुझे कुछ दोगी, लेकिन आज की रात जब वो मील जो तुमने गरीब को दिया था, जैसे ही हम किसी गरीब को चैरिटी करते हैं फौरन ये कन्वर्ट होके वहां पे मिल जाता। क्या वो वेस्टर्न यूनियन वाले भी इतने जल्दी नहीं भिजवाते होंगे जितने जल्दी चैरिटी कन्वर्ट होके वहां मरहूम को मिलती है, उसी सेकंड भी ज्यादा। चुनाचे उसी वक्त इसका सवाब मिला। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूं, थैंक यू। मैं तकलीफ में था, पनिशमेंट था, अजाब था, थोड़ा सा ये अजाब कम हो गया ड्यू टू दिस चैरिटी ऑन माई बिहाफ। अच्छा, एक तरफ बीवी बड़ी खुश हुई कि भाई इतने फाके किए, इतनी जहमत उठाई, अपने आगे की रोटी रोक दी ताकि 2 पेनी बच जाएं, तो कम से कम ये तो पता चला ना कि वहां मिल गया खाना। दूसरी जानिब शी वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि मेरा शौहर कह रहा है कि आज की रात जो मील था वो मिल गया। दैट मीन्स आज से पहले मील नहीं मिला। मैं तो 20 वीक से, मैं तो 30 शब जुमा, मैं तो 40 शब जुमा, और आंख खुल गई। अब ये ड्रीम है या सपना है, ये अपने कंट्रोल में तो नहीं है ना। आंख खुल गई, शौहर चला गया। अब इसके जहन में फकत एक बात आई, क्योंकि चैरिटी का सवाब अल्लाह ने इक्वल नहीं रखा। चैरिटी में यह भी डिपेंड करता है कि आप कहां स्पेंड कर रहे हैं। इवन गरीब को दे रहे हैं। इमाम की हदीस है 1 is equal to 10, 1 is equal to 70, 1 is equal to 700, 1 is equal to 7,000, 1 is equal to 70,000, 1 is equal to 100,000. 1 pound is equal to 10, 70, 700, 7,000, 70,000. फौरन लोगों ने पूछा, मौला हाउ इट्स पॉसिबल? कहा कि अगर एक आम इंसान को दोगे तो 1 is equal to 10 नॉन मुस्लिम को, और अगर किसी मुस्लिम को दोगे तो 1 is equal to 70 सवाब, रिवार्ड। और अगर किसी मोमिन को दोगे तो 1 is equal to 700, और अगर किसी रिश्तेदार को दोगे तो 1 pound is equal to 7,000, और अगर पेरेंट्स को दोगे तो 1 is equal to 70,000, और अगर किसी आलिम या रिलीजियस स्टूडेंट को दोगे तो 1 is equal to 100,000। पाउंड वही 1 पाउंड है, वैसा ही है वो। लेकिन तो अब बीवी के मगज में ये बात आई कि शायद आज मस्जिद में कोई इतना पॉयस आदमी आया, उसको जो मील मिला उसकी वजह से ये फौरन इंस्टेंटली उसी सेकंड मेरे शौहर के पास गया। जब इतना बड़ा आदमी है, इतना पॉयस है, तो बेनिफिट लेना चाहिए, जाके उससे दुआ करवाना चाहिए। और अब ये वेट नहीं कर सकती है सुबह का, हो सकता है सुबह तक वो चला जाए मस्जिद में। इतने पॉयस आदमी कहां बाई चांस ही तो आते हैं। जल्दी से अपने बच्चे को उठाया, 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा। बच्चे ने आंखें खोली, अम्मा क्या बात है? कहा लेके जाओ मस्जिद में, बताओ किस आदमी को आज तुमने खाना खिलाया। मां तो इसलिए ये क्वेश्चन कर रही है ताकि उससे जाके दुआ करवाए कि हमारे प्रॉब्लम्स दूर हों। ये तो दुआ का एक उसूल है ना कि अपनी दुआ दूसरे से करवाओ। इन सर्टेन केसेस अपने लिए दुआ कबूल नहीं होती है, लेकिन दूसरे के लिए की जाए तो कबूल होती है, वो एक अलग टॉपिक। चलो लेके चलो। बच्चा रोने लगा, कहा अम्मा गलती हो गई है, मुझे मां। आइए मौलाना आगे तशरीफ लाइए, वहां का बैठे नहीं, आगे 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 तशरीफ लाइए। बिस्मिल्लाह।
थोड़ा सा रास्ता दे दीजिएगा जी। ठीक है। बच्चा कहने लगा अम्मा गलती हो गई है, माफ कर दे, आइंदा मैं ये नहीं करूंगा। अरे बेटा मैं गलती क्या, मैं तो कह रही हूं जाओ उस आदमी के पास, मुझे लेके चलो, मुझे दुआ करवाना। बच्चा फिर रोता जा रहा। बहरहाल बनी इस्राइल का पुराने जमाने का बच्चा था ना, आपके बच्चे तो अकड़ के बात करेंगे, उनको सिखाया स्कूल में यही जाता, हाउ टू डिसरिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड योर एल्डर्स। और जो स्कूल में कमी रह जाती है तो भाई ये मीडिया उनको सिखाता है किस तरह बदतमीजी से बात की जाती है अपने बाप और माँ से, हाउ टू इंसल्ट देम। बच्चा रोने लगा, अम्मा दोबारा गलती नहीं होगी, माफ कर दो। जो 3 मरतबा बच्चे ने कहा तो अब जरा सी मां भी अलर्ट हुई, कॉशियस हुई। क्या मतलब बेटा, क्या गलती हुई? कहा पहले अम्मा ये बता दो किसने आके रिपोर्ट दी, मैंने तो चारों तरफ चेक किया था, वहां कोई नहीं था। हाँ, जैसे बरादर हसनैन अब्दुल्ला ने कहा कि वो जो लोहार था और वो जो औरत थी और अल्लाह देखने वाला था, लेकिन आदमियों में कोई नहीं था। माने का क्या गलती? कहा अम्मा मैं हर शब जुमा ये खाना लेके जाता था, किसी को दे के आता था। अब देखिए, जिसके घर में फाके हो और जितना खाना ये अफोर्ड कर सकते हो, माँ उसको भी कम कर देती हो ताकि कुछ पेनी बचा के शौहर के लिए भिजवा। यानी उर्दू में एक सेइंग है कि पेट में चूहे दौड़ रहे हो, भूख लग रही हो और उसके हाथ आप एक बड़ा सा लजीज खाना भिजवाएं, ये कितना बड़ा उसका टेस्ट और इम्तिहान है। बच्चा है फिर भी 30 वीक रिजल्ट्स कर गया, कहने लगा आज इतनी भूख थी मैं बर्दाश्त ना कर सका, आज वो खाना मैंने खा लिया, किसी और को नहीं दिया। अब तो मां बड़ी सरप्राइज, जब दूसरों को चैरिटी मिली तो मेरे शौहर तक नहीं पहुंची और जो मेरे बच्चे ने खाना खा लिया। अगली सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग नबी के पास गई, जो भी नबी ने इसको कंफर्म किया, जिससे अंग्रेजी का भी एक प्रोवर्ब है ना, चैरिटी बिगिंस, क्या है वो? हाँ, बस आप जानते हैं, यही मेरा मकसद था। तो खुलासा ये खाली चैरिटी के लिए नहीं है, इसी वजह से तो अब गरीबों को मिलना बिल्कुल बंद हो गया। भाई बहुत बड़ी गरीब तो हमारे घर बैठी है जिसका खाली मेकअप का ही खर्चा 500 पाउंड महीने का है, और चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले इसको पूरा करना। हमारे यहाँ इसको खाली चैरिटी तक रखा गया ना, क्योंकि इंग्लिश प्रोवर्ब है। आइए अब देखिए इस्लाम क्या कहता है। नबी ने कंफर्म किया, मैंने कहा बच्चे ने बड़ा रेजिस्ट किया, इसके पेट में खाने को नहीं है, और 30 वीक इसने उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। हम और आप तो इमाम का माल नहीं छोड़ते हैं, हक़ फातिमा जो है वो खा जाते हैं। खुमुस कोई आदमी, कितने लोग अभी तक ऐसे हैं स्टिल, या तो खुमुस दे नहीं रहे या ऐसे ही आंखें बंद करके दे रहे हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन, जो हराम है। या तो हायर साइड पे जाके दे दीजिए, वरना कैलकुलेशन वाजिब है। तो ऐसा ही है कि आप रोजे रखते चले गए, 40, 50, 60 जितने अल्लाह को चाहिए ले ले, बाकी छोड़ दे। आपने जोहर की नमाज शुरू की 10-12 रकत, कहा जितनी अल्लाह को चाहिए ले ले, बाकी छोड़ दे। ये ऐसा नहीं चलता है, लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं। लेकिन अभी आज का टॉपिक नहीं, आज का टॉपिक क्या कि नॉट ओनली चैरिटी ऑल्सो द तबलीग। जो शहजादी ज़ैनब ने कूफा और शाम में जिहाद किया, कल की पूरी मजलिस और आज की शुरू की मजलिस अब तक जितनी हो गई, ये पहली रिक्वायरमेंट ये है कि सबको चेंज करना, अपने फैमिली को नहीं चेंज करना, अपने घर वालों को चेंज नहीं करना, अपनी वाइफ को और अपने हस्बैंड को चेंज नहीं करना, अपनी औलाद को और औलाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पेरेंट्स को चेंज करें। देखिए वाकई बच्चे भी चाहें तो पेरेंट्स को चेंज कर सकते हैं। गुनाह के कामों में चेंज किया है ना, कितने ही गुनाह आपके घर में फकत बच्चों की वजह से, वरना अगर आप ईस्ट अफ्रीका में रह रहे होते कभी ये गुनाह नहीं होते। क्या करे, बच्चों की डिमांड है। इसी तरह बच्चा चाहे तो वो अपने पेरेंट्स को चेंज कर सकता, लेकिन ये बात अभी आगे चलकर होगी। तो जो शहजादी ज़ैनब और मेरे मजलूम आका सज्जाद का जिहाद है, वो बिगिंस फ्रॉम द होम, पहले घर से शुरू करना, आपको अपने घर का माहौल ऐसा बनाना। और याद रखिए एक चीज, लिविंग इन द वेस्ट, आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है जो हजरत मूसा ने अपनी कौम को जवाब दिया था। देखिए जनाब मूसा के जमाने में फिरौन कितना उसका प्रेशर था। मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं, इस पे मैंने पूरा अशरा पढ़ा है टोरंटो में, और वो जुमला क्या कि मोर और लेस आज का वेस्टर्न सिविलाइजेशन जस्ट लाइक फेरो, हजरत मूसा के जमाने का सिविलाइजेशन। यानी
आज तक दुनिया मानती है इजिप्शियन सिविलाइजेशन कितनी स्ट्रांग थी, और हजरत मूसा की कौम बनी इसराइल उनके स्लेव थे, हर तरफ से उन पे प्रेशर डाला जा रहा था। बिल्कुल यही मोर और लेस की सिचुएशन वेस्ट में आकर आपकी हो गई। आप अकेले हैं, आप वीक हैं, आप कमजोर हैं, और एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं कि हर तरफ से आप पे प्रेशर पड़ रहा। स्कूल, कॉलेज, मीडिया, जॉब, इवन शॉपिंग मॉल, सड़क, न्यूज़पेपर, मैगजीन, जिधर जाएंगे हर तरफ से आप पे प्रेशर पड़ रहा। ऐसे वक्त में आपकी सर्वाइवल कहां है? कहां पे जाके आप अपने आप को और अपने रिलीजन को बचा सकते हैं? तो ये तो खैर हमारा टॉपिक है, लेकिन क्या इससे पहले ह्यूमन हिस्ट्री में कोई ऐसा टाइम पीरियड आया कि जब वो सिविलाइजेशन या कल्चर इतना स्ट्रांग हो गया हो कि अल्लाह के मानने वाले हर तरफ से उस कल्चर के अंदर घिर गए हों, वो प्रेशर डाल रहा हो? हाँ, आया। फिरौन का और बनी इसराइल का टाइम पीरियड। कुरान करीम ने सबसे ज्यादा जिस नबी का वाकया कोट किया वो मूसा है। वाई? इसलिए कि आज के इस टाइम पीरियड में हमें मूसा ही के वाकये की जरूरत। गोया हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हमारे यहां जो रिपीट हो रही है वो मूसा वाली हिस्ट्री। फिरौन जो अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहता, हर तरह से प्रेशर डाल रहा है। बनी इसराइल ने कहा हमें क्या करना? या नबी खुदा मूसा हमें कोई गाइडलाइन दीजिए। जैसे आप में से जो आपके जो बड़े हैं वो परेशान हो जाते हैं, बच्चियां हाथ से निकली जा रही, बच्चे हाथ से निकले जा रहे, यंग जनरेशन बात नहीं मान रही, कहते कोई एडवाइस, कोई गाइडलाइन। तो जनाब मूसा ने अपनी कौम को एक गाइडलाइन दी थी। 2 फेज में काम हुआ था। भाई असल में तो हमें फिरौन को शिकस्त देना, लेकिन पहले अपने आप को, अपनी सारी पावर्स को, अपने रिलीजन को सेव करो, पहले अपने आप को बचाओ, फिर अटैक करना। जो कोको कोला का कल्चर, जो जीन्स का कल्चर, जो माइकल जैक्सन और मैडोना का कल्चर, इतना ज्यादा वो हमारे ऊपर हावी आ रहा, हर चीज को सुपरसीड कर रहा। तो इसके 2 तरीके हैं, यानी 2 तरीके का मतलब यह कि 2 फेज हैं। पहला फेज इजअलू बुयूतकुम क़िबला, यह कुरान की आयत। हजरत मूसा ने कहा अपनी कौम से कि जब इतनी स्ट्रांग सिविलाइजेशन तुम्हारे ऊपर, तो पहला काम ये करो अपने घरों को, ये घर जो है ना, ये पहला तुम्हारा बेसिक यूनिट बनेगा। अपने घरों को क़िबला बनाओ। यानी क़िबला बनाओ का मतलब क्या? जैसे अभी मैंने फारसी का एक मुहावरा पढ़ा था ना कि क़िबला किसे कहते हैं, जैसे गाइडेंस में। अच्छा, क़िबला किसे कहते हैं? चले, ये लफ्ज आ गया ना, कुरान से सुनिए क़िबला किसे कहते हैं। मूसा की एडवाइस दीजिए अपने घर को क़िबला बनाना। इन्ना अव्वल बैत वुज़िया लिन्नास लल्लज़ी बक्का मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। कुरान क़िबले की एक डेफिनेशन कर रहा कि सबसे पहला घर जो मक्के में बनाया गया, नंबर 1 ये बरकत वाली जगह, यहां से बरकत आती। नंबर 2 यहां से सारी यूनिवर्स को हिदायत मिलती। क़िबले की 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक, वो बरकत देता, वो हिदायत देता। और हमारे लिए क्या एडवाइस है? इजअलू बुयूतकुम क़िबला, अपने घरों को क़िबला बनाओ। यानी फर्स्ट स्टेज में हमें पूरे यूके को चेंज नहीं करना, हमें पूरे वेस्ट को चेंज नहीं करना। लिविंग इन द वेस्ट हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने घरों को क़िबला बनाना, अपने घरों को ऐसा बनाना जिस घर में बरकत आए और जिस घर से हिदायत मिले। हमारा घर हिदायत का सेंटर बनेगा। यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह हमारी ड्यूटी है। क्योंकि हजरत खाने काबा के क़िबले के लिए कुरान ने कहा अल्लाह ने उसे बनाया। इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िया, अल्लाह ने बनाया। लेकिन हमारे घरों के लिए मूसा ने कहा इजलू, तुम लोग बनाओ, अल्लाह नहीं बनाएगा। तुम्हारे घर को अल्लाह नहीं बनाएगा। इजलू, अपने घरों को तुम्हें सही करना। और ये 2 चीजों का ख्याल करना। अब आइए ये 2 चीजें कुरान बता रहा। पहली चीज ये है कि बरकत आनी चाहिए, तो आपका घर ऐसा हो जिसमें बरकत होनी चाहिए। बरकत कुछ लोगों का नाम भी होता नहीं, ये प्रॉपर नेम की बात नहीं हो रही है, एडजेक्टिव है। बरकत आनी चाहिए, मुबारक, मुबारक हो। लेकिन कैसे ये बरकत आई? अपने आप को वेस्ट में, लिविंग इन द वेस्ट मेरा टॉपिक है ना, घरों को क़िबला बनाना। क़िबला मीन्स बरकत। अच्छा, पहले यहाँ रसूल खुदा की एक वो हदीस सुन लीजिए जो निगेटिव एस्पेक्ट को समझा रही है। अल्लाह के रसूल कहते हैं देखो खबरदार,
वो गलती ना करना जो यहूदियों ने की थी। यहूदियों का क्या प्रॉब्लम था? मूसा ने उनको ये एडवाइस किया। ये एडवाइस जो है ना, दैट्स नॉट एनफ या दैट्स नॉट ऑल। इसके बाद सेकेंड स्टेप था अपने घर के बाहर चेंज करना। अब क्या हुआ? घर के बाहर चेंज हुआ यानी फिरौन मारा गया, और वो पहली एडवाइस को भूल गए। और वही रसूल खुदा कह रहे हैं यहूदियों वाली गलती ना करना। उन्होंने अपने घरों को कब्र बना दिया था। हमें अपने घरों को किबला बनाना। यहूदियों ने, वैसे पहले ये एडवाइस तो यहूदियों को दी गई, अपने घरों को किबला बनाओ। उन्होंने किबला नहीं बनाया, कब्र बना दिया। अच्छा, क्या मतलब? मैंने कहा किबला बनाओ तो मैंने डिफाइन किया किबला किसे कहते हैं। कहा कब्र ना बनाओ, ना बनाओ। मैंने कहा ना नेगेटिव अंदाज से ना बनाओ, तो किसी की समझ में नहीं आया। या रसूल अल्लाह, कब्र किसे कहते हैं? जो आपने कहा ना घर को कब्र ना बनाओ। कहा इसका मतलब यह कि यहूदी, ये वही गलती है जो ईसाइयों ने रिपीट की, और ये वही मिस्टेक है जो आज वेस्ट में शिया कर रहे हैं। 2 दफा हम देख चुके हैं ये इस मिस्टेक हो चुकी है, और रसूल खुदा कह चुके हैं डोंट रिपीट द मिस्टेक ऑफ जूज एंड क्रिश्चियंस। क्या गलती? इस वक्त खाली एक पॉइंट की बात हो रही है। अच्छा, जूज और क्रिश्चियन की गलती हमको दिन में कितनी मर्तबा रिमाइंड कराई जाती है? गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये मग़ज़ूब जूज हैं, ये ज़ालिन क्रिश्चियंस हैं। रोजाना आपकी दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें इन जैसा ना बनाना। तो उनका मिस्टेक क्या था? बहुत सारी बातें इस वक्त के टॉपिक में। और वो ये रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि यहूदियों ने अपना सारा रिलीजन घरों तक अपनी इबादत गाह, सैनगोआ जिसे आजकल कहते हैं, सारी इबादतें वहीं होंगी। नमाज वहीं पढ़ी जाती है, दुआएं वहीं पढ़ी जाती हैं, इबादतें वहीं की जाती हैं, घर में कुछ नहीं होता है। अच्छा, वो कौन सी जगह है जहां से कोई नेकी आसमान पे नहीं जाती? वो कब्र। कब्र वो प्लेस है, वहां पे आपको नेकी का चांस नहीं मिलेगा। वहां तो कोड़े पड़ेंगे और सांप और बिच्छू काटेंगे। और ये हर एक जानता है। थोड़ा सा शायद मैं कल बता दूं। नहीं, मैं कोई ऐलान नहीं करता हूं, मुझे कल मजमा चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं सही तो इतने लोग के मजलिस शुरू हो जाए। खुलासा ये कि कब्र इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड जहां से कोई नेकी आसमान की तरफ नहीं जाती। जब मुर्दा कब्र चला गया, ना नमाज जाएगी, ना रोजा जाएगा, ना हज जाएगा, ना दुआए कुमैल जाएगी, ना दुआए तवस्सुल, ना जियारत, ना कुछ नहीं। कब्र में तो खाली आदमी अपने एक्शंस का रिजल्ट देखता। कहा यहूदियों ने अपने घर को कब्र बना दिया था। घर में कुछ नहीं होता है, सारा रिलीजन उनकी इबादत गाह या सैनिक गुआ तक। और यही क्रिश्चियन ने किया कि जब वो चर्च में है तो क्रिश्चियन है, चर्च के बाहर कुछ पता नहीं चलेगा। कहा तुम ये गलती नहीं करना, तुम्हारे घर कब्र ना बने, फिर क्या बने? किबला बने। किबला, मैंने इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक तो बताए जो कुरान ने कहे, बरकत, हिदायत। लेकिन जो सबसे फेमस उसका कैरेक्टरिस्टिक है जिसको कुरान ने यहां पे नहीं बताया, वैसे आगे बताया, क़यामन लिन्नास, कि किबला वो है कि जहां पे हर वक्त आप देखेंगे इबादत का सिलसिला जारी। खाना खुदा दुनिया की वो मस्जिद है कि 24 आवर्स। रोजा रसूल में भी ये नहीं है रात को लॉक हो जाता। करबला में इमाम का रोजा रात को लॉक हो जाता। मशहद में इमाम का रोजा लॉक हो जाता। दुनिया में ओनली मस्जिद है कि 24 आवर्स खाली खुली नहीं रहती। हो सकता है कि आप भी लेस्टर का सेंटर कल से खोलने लगे, मौलाना ने कहा आएंगे कौन लोग इबादत करने, लेकिन खाना काबा में 24 आवर्स इबादत जारी है। सबसे बड़ी उसकी कैरेक्टरिस्टिक, मूसा कह रहे अपने घरों को किबला बनाओ। यानी हमारा घर वो है कि मस्जिद, अब इमाम बाड़ा सेंटर अपनी जगह, घरों के अंदर भी इबादत हो और बरकत हो और हिदायत हो। ये ओनली वे है टू सर्वाइव। जब इतना जबरदस्त कल्चर और सिविलाइजेशन आपको क्रश कर रही हो, ये वाकई इस वक्त क्रश करने वाला कल्चर हमारे सरों पर है। अगर हम मुसलमान ना होते तो अब तक खत्म हो चुके होते। ये इस्लाम की बरकत से बचे हैं, लेकिन इसके लिए अगर आप बाहर कहीं पे आपको रिलीजन बचाने का मौका नहीं मिल रहा, अपने घर को किबला बनाना है। लिविंग इन द वेस्ट पहली एक अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, अब यहां पे एक बात मैं कह दूं कि पैगंबर ने कहा घर कैसे बनाओ, वहां भी इबादतें।
इसीलिए अक्सर मराजे कहते हैं सुन्नत नमाज घर में पढ़ने का सवाब ज्यादा। अक्सर मराजे कहते हैं, बल्कि ये तो पैगंबर की हदीस, कि घर में इबादतों का सिलसिला रहना चाहिए। अगर दुआए कुमैल आपने यहां पढ़ ली शब जुमा, तो घर में एटलीस्ट कोई एक दुआ शब जुमा जरूर। जो लोग ईस्ट अफ्रीका से आए हैं उनके अब तक ये है, लेकिन जो लोग यहाँ के कलर में रंग गए हैं, आप देखें उनके यहाँ घर और इमाम बाड़ा बिल्कुल सेपरेट चीजें। जस्ट लाइक क्रिश्चियन, चर्च में जाएगा तो इतना शरीफ बनेगा, लेकिन दुकान के अंदर या अपने घर में कोई चीज नजर नहीं आएगी। खाली एक क्रॉस उसने गले में लटका लिया, या मैरी की एक फोटो उसके यहाँ आ गई, हजरत ईसा का एक स्कल्पचर आ गया, बस इतना इतना हमारे यहाँ भी। लेकिन जो रियल होना चाहिए, अब मैं उसको समझा रहा हूं कि वो क्या है, अब समझा रहा हूं। देखिए हमारे यहाँ एक अजीब बात है, हमारे घर ऐसे, क्योंकि अभी हमारी वो जनरेशन चल रही है ना जो ईस्ट अफ्रीका से या पाकिस्तान से आई। अभी वो बच्चे आगे नहीं आए जिन्होंने कंप्लीटली जिन्होंने पूरा यहीं का माहौल देखा हो, है कहीं कहीं। तो नतीजा क्या है, हमारे घर इस वक्त जो है ना ऐसे हैं कि हमारे घर में आके फरिश्ते भी चकरा जाते हैं, फरिश्तों में भी लड़ाई हो जाती है। हमारे घरों में फरिश्तों में लड़ाई हो जाती है। रीजन बता रहा हूं। एक साहब किसी के घर मुलाकात के लिए गए, गए तो उसके घर में एक कुत्ता पला हुआ था, बड़ा खौफनाक, बड़ा भयानक। उसने इनको देखा, विजिटर को आते हुए भौंकने लगा। अगरचे एक अंग्रेजी में ये शायद सेइंग है कि बार्किंग डॉग नेवर बाइट्स, लेकिन ये तो हमने सुना है ना, कुत्ते ने तो नहीं सुना। तो खुलासा ये है कि अब ये घबरा गए, चकरा गए, डर गए। वो जर्मन शेफर्ड है या पता नहीं और कौन सा है, इतने बड़े बड़े दांत हैं और वो घुर्रा रहा। अब वो जो जिनका घर था, जो इनके गेस्ट थे, उन्होंने कहा आप डर क्यों रहे हैं, जरा आइए देखिए कितनी मोहब्बत कर रहा है, अपनी दुम को आपको देख के हिला रहा। इन साहब ने कहा यही तो मैं चकरा गया हूं कि इसके कौन से एंड पर भरोसा करूं। एक एंड देखता हूं तो इतने भयानक दांत है, दूसरी तरफ देखता हूं तो मोहब्बत से दुम हिला रहा। यही मसला हमारे घरों का है, फरिश्ते भी चकरा जाते हैं। हमारा घर ऐसा है कि इस घर को देखकर रहमत के फरिश्ते आते हैं आसमान से ताकि रहमत पहुंचाए, और लानत के फरिश्ते आते हैं आसमान से ताकि अजाब लेके आए। दरवाजे पे दोनों एक दूसरे से टकरा गए। रहमत के फरिश्तों ने लानत के फरिश्तों से कहा तुम दूर जाओ, ये हमारी जगह, और लानत के फरिश्तों ने कहा तुम दूर जाओ, ये हमारी जगह। क्या मतलब इसका? हमारे घरों में बरकत, किबला किसे कहते हैं जहां बरकत हो। हमारे घर को क्या होना चाहिए, इजअलू बुयूतकुम किबला, हमारे घरों को किबला होना चाहिए। तो हमारे यहाँ बरकत की कुछ चीज है, क्यों? कुरान रखा हुआ, हदीसें किताब पढ़ ली जाती, कोई तावीज, कोई नादे अली, कोई इस अंदाज का कोई ना कोई नक्श दीवार पे हैंग है। कभी कभार या चले नॉर्मली कुछ दुआएं भी हो जाती। नोहे के कैसेट भी अय्याम अज़ा में बजते हैं। सारी बरकत वाली चीजें, रहमत वाली चीजें, फरिश्ते दौड़ के आते। लेकिन इन्हीं के साइड बाय साइड शराब भी नजर आती, बेयर भी नजर आती, कुत्ता भी नजर आता। अच्छा आप सुनिए, 8, 10, 15 हदीसें, उन सब को शॉर्ट कर रहा हूं। वो हदीसें ये हैं कि पैगंबर की एक हदीस है, जिस घर में सर्टेन थिंग्स होती हैं रहमत नेवर कम्स, कभी रहमत नहीं आती, वहां पे अल्लाह की लानत आती है, वहां पे अल्लाह का अजाब आता है। अच्छा उसमें से 2 चीजें हर एक को याद है, नंबर 1 शराब, नंबर 2 कुत्ता। ईस्ट अफ्रीका में लोग घरों में कुत्ते नहीं पालते थे। यहां कभी कभार आपके बच्चों ने शायद डिमांड भी शुरू कर दी, आपने तो शायद डांट के खामोश करा दिया, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगी। लेकिन कुत्ता हर एक को पता है, जहां कुत्ता है वहां पे फरिश्ता नहीं आता है। इसीलिए बास उलमा का यह वाकया है, मुफ्ती मीर अब्बास शुस्तरी का ही वाकया। एक बार ट्रेन में जा रहे थे, इस 100 साल पहले की बात है, जब पार्टी बहुत ज्यादा थी, नजासत तहारत का कंसेप्ट बहुत ज्यादा। देखा कि सामने की सीट पर एक बहुत ही पुआयस आदमी बैठा है। मुफ्ती मीर अब्बास साहब हमारे इंडिया पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट के बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे। मर्जे तो ना थे, लेकिन ऐसे अजीम आलिम थे कि नजफ के हौजा, उस वक्त तक कुम में हौजा नहीं था, उन लोगों ने इनकी तारीफ की और इनका प्रेस किया, और इनके स्टूडेंट्स की कुछ बुक्स हैं जो नजफ के अंदर आज तक छापी जाती हैं। खैर मेरे पास टाइम कम है। देखा कि सामने बड़ा पुआयस आदमी बैठा,
गैर शिया अहले सुन्नत, सफेद दाढ़ी भी है, तस्बीह भी है, बातों से भी लग रहा है कि काफी पॉइस आदमी, लेकिन उसके साथ एक कुत्ता। अब ये दो चीजें एक दूसरे से मैच नहीं करती। शराबी के साथ कुत्ता नजर आए तो बहुत कोई ताज्जुब नहीं होता, और नमाजी के पास कुत्ता हो तो बहुत हैरत होती। उन्होंने कहा ये आप, 100 साल पहले मैंने कहा पॉइटी ज्यादा थी, स्पेशली नजासत तहारत में, कहा ये आप इतने नमाजी आदमी, तिलावत कुरान करने वाले, कुत्ता क्यों है? कहा कि मुझे पता है कुत्ता नजिस, बहुत मैं इसको हेट करता हूं, तो रखा क्यों है? कहा इसलिए कि मैं मौत से भी बहुत डरता हूं। होगा उस जमाने में कोई कब्र वाला बापू मेरी तरह से? कहा मैं मौत से बहुत डरता हूं। अरे तो मौत से डरते हैं तो कुत्ता? कहा कि चौके हदीस से रसूल है, जहां कुत्ता है वहां फरिश्ता नहीं आता, तो बस इसीलिए कुत्ता रखा हुआ है कि कुत्ते की वजह से कोई फरिश्ता मेरे करीब ही नहीं आएगा। अब उनका रिप्लाई भी है कि बहरहाल आपके लिए तो चले नहीं आएगा, कुत्ते की रूह कब्ज करने तो आएगा ना कभी फरिश्ता, साथ में आपका भी काम तमाम कर देगा, रूहें मिक्सअप ना हो जाए। खैर, तो ये इतनी फेमस बात है, जहां कुत्ता है वहां रहमत नहीं आती। मेरा जुमला, कुरान की आयत, आज का टॉपिक है इजअलू बुयूतकुम क़िबला, अपने अपने घरों को क़िबला बनाओ। और कुरान ने कहा क़िबला है मुबारकम व हुदन, क़िबले की दो खुसूसियात है, वहां बरकत होती है और हिदायत होती है। बरकत, कुत्ता हो वहां बरकत नहीं, शराब या ड्रग्स हो तो वहां बरकत नहीं, जिसमें बेयर भी शामिल है। लेकिन इसके बाद भी तो कुछ चीजें इस लिस्ट में हैं। रसूलुल्लाह की लिस्ट में खाली दो चीजें नहीं हैं। देयर आर सर्टेन थिंग्स विच स्टॉप्स द बरका, विच स्टॉप द रहमा फ्रॉम एंटरिंग अवर हाउस। वन ऑफ देम ये जितने भी ड्रग्स और शराब। नंबर 2 कुत्ता। नंबर 3 म्यूजिक। जिस घर के अंदर हर वक्त म्यूजिक बजती रहे, जो हराम वाली म्यूजिक है, जो सॉन्ग्स हैं, कहा जिस घर में ये चीजें होती है वहां कभी रहमत नहीं आती है, कभी बरकत नहीं आती है, अल्लाह की लानत आती है। इसी घर में हदीस किसा पढ़ी गई या दुआए कुमैल पढ़ी गई, रहमत का फरिश्ता दौड़ के आया, हु कॉल मी, और लानत का फरिश्ता भी दौड़ के आया, इसलिए कि इसी घर में सॉन्ग्स भी बज रहे हैं। हम तो वो लोग हैं कि अपनी कम्युनिटी में क्या झगड़ा करें, हम तो फरिश्तों में झगड़े करा देते हैं। लेकिन क्यों? इसलिए कि हिपोक्रेसी हमारे, ना फुल मुस्लिम है ना फुल काफिर, मुज़ब्ज़बीना बैना ज़ालिक ला इलाहा उलाय व ला इलाहा उलाय। हम दो कश्तियों में पैर रख के चल रहे हैं। अल्लाह को भी खुश करना है, क्योंकि बहरहाल कब्र का अजाब और क़यामत का अजाब तो उसी वक्त सेफ होगा जब अल्लाह खुश हो, और शैतान को भी खुश करना है, क्योंकि दुनिया में रहना। तो म्यूजिक, जिस घर में म्यूजिक होती है वहां, अच्छा एक बात छोटी सी और सुन लीजिए। एक साहब को किसी ने देखा मिडनाइट को, वो जो स्ट्रीट होती है सड़क भी, जिसपे वो एम्बर लाइट, बड़े बड़े वो ऑरेंज बल्ब लगे हुए, वहां कुछ ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। ये करीब गए, आदमी आदमी की हेल्प करता, कहा कि आप यहाँ कुछ ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? कहा मेरा वॉलेट गिर गया है, पर्स गिर गया है, उसके अंदर कार्ड्स हैं और उसके अंदर क्रेडिट कार्ड है और उसमें इतनी कीमती चीजें और इसमें इतना कैश भी। जीनियन प्रॉब्लम। कहा अच्छा अच्छा आप ढूंढे, मैं आपकी हेल्प करता हूं। किधर गिरा? कहा गिरा तो वो पार्क के अंदर है। भाई पार्क में गिरा तो यहां क्यों ढूंढ रहे हैं? कहा वहां डार्कनेस है, उसमें क्या नजर आएगा, यहां लाइट बहुत है, शायद इसमें नजर आ जाए। पर्स अगर आपको ढूंढना है, वैलेट, तो लाइट और डार्कनेस नहीं, जहां गिरा है वहीं जाके ढूंढना पड़ेगा। आज हमारे यहां ये होता, लोग दौड़े दौड़े आते हैं, मौलाना ऐसा लग रहा है कोई हम पे जादू करा रहा है, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आ रहे हैं। कोई आता है कि मौलाना अच्छा भला जॉब छूट गया, ऐसा लग रहा है किसी दुश्मन की नजर लग गई। भाई मैं हर वक्त बीमार रहता हूं, ऐसा लगता है कोई मेरे अगेंस्ट हो गया। यानी मोमिनीन दौड़े दौड़े आते हैं, प्रॉब्लम तो है, कोई बीमार है, कोई जॉबलेस है, किसी के पास इतनी इनकम नहीं है कि उसका घर चल सके, उससे किसी की औलाद सीधे रास्ते से हटी जा रही, कहीं शौहर बीवी में झगड़ा हो रहा, सैकड़ों प्रॉब्लम लोग लेके आते हैं जहां भी। ये तो हर आलिम का काम है, और मैं तो खैर एक तालिब इल्म हूं, मेरे पास भी लोग आते हैं। लेकिन वही मसला कि जो आपका असल प्रॉब्लम है वो ये नहीं है कि कोई आप पे जादू कर रहा, या कोई आपको नजर लगा रहा, या कोई आपसे हसद कर रहा, या कोई आपका एनिमी। देखिए जहां का प्रॉब्लम है वहीं जाके प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना पड़ेगा।
आपका पर्स गिरा है, डार्कनेस से आप आके स्ट्रीट पे ढूंढ रहे, कभी नहीं मिलेगा। जो प्रॉब्लम है वहां जाइए। और हमारा प्रॉब्लम क्या? हमारा प्रॉब्लम ये, हमारे घर में सॉन्ग्स बज रहे हैं, हम कहते हैं कि अल्लाह की रहमत क्यों नहीं आती। वो आई थी, ये भी मैं बता दूं, वो आई थी, उसने कोशिश की एंटर होने की। आपने अपने घर में इतना बड़ा लॉक लगा दिया, वो कैसे एंटर हो जाए? उस लॉक का नाम है सॉन्ग्स। चलें खैर, हो सकता है ऐसे लोग भी हों जो कहते हैं हमारे घर में सॉन्ग नहीं बजते, लेकिन अभी हदीस इनकम्प्लीट। जहां पर गैम्बलिंग से रिलेटेड कोई चीज रखी हो, वहां पे कभी अल्लाह की रहमत नहीं आती। चाहे वो गैम्बलिंग, वो कैसीनो की बड़ी बड़ी मशीनें हो, और चाहे वो चेस और कार्ड का एक पैकेट रखा हो। जिस चेस और कार्ड घर में रखे हुए हैं या खाली कार्ड रखे हुए हैं, रहमत नहीं आती। हम तो नमाज शब भी पढ़ते हैं। अरे भाई, आपकी नमाज शब पढ़ के फरिश्ता आपको आया था रहमत देने, चारों तरफ घूम के चला गया, उसको घर में एंट्री ही नहीं मिली। अब ये इतना ज्यादा कम। एक साहब कहते हैं जी हम कार्ड तो खेलते हैं, लेकिन उसमें कोई बैटिंग नहीं होती। ताश तो हराम है, चाहे बैटिंग हो चाहे बैटिंग ना हो। बैटिंग के साथ फुटबॉल हराम होता है, क्रिकेट हराम होती है, उसमें ठीक है कि विदाउट बैटिंग जायज है, विद बैटिंग हराम। लेकिन ताश और एक इमाम खुमैनी और आगा खामेनाई को छोड़कर बाकी महाराजे, स्पेशली सैयद सिस्तानी, जिनकी तकलीद में आपकी मेजॉरिटी, और सैयद खुई, तो कहते हैं कंप्यूटर के ऊपर भी अगर कार्ड का गेम खेला जा रहा है तो वो हराम है, चेस खेली जा रही है तो हराम। मसला इस वक्त हराम हलाल का नहीं है, वो तो शायद कोई अलग सेशन जमात रखेगी। मसला है बरकत का। घरों को, वेस्ट में रहने वाले की जिम्मेदारी घरों को बरकत बनाए। अच्छा, अब देखिए, अब इसमें एक और चीज भी आ रही है, लिस्ट चल रही है कुत्ते से, स्टार्ट फ्रॉम कुत्ता एंड आज की मजलिस की हद तक। कहा जिस घर में कोई बेपर्दा औरत रहती है, अब बताइए कितने घर बच गए। मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं, उसको लिटरली मत लीजिए। वो ये कि मैं कहता हूं कि इस्लामी मुल्कों में तो बेपर्दा औरत फिर भी चल जाएगी, यहां नहीं चलेगी। लोग उल्टी बात कहते हैं, कहते मौलाना हिजाब वहां किया जाता है, यहां बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन होना चाहिए उल्टा। वाई? इसलिए कि यहां जिस वेस्ट में आप रह रहे हैं, आप पर प्रेशर इतना ज्यादा है, कल्चरल प्रेशर। देखिए, यहां शैतान ने टैक्टिस बदली, या फिरौन के जमाने था या आज के जमाने में। आपसे ये नहीं कहता है कि शिर्क करो, आपसे ये नहीं कहता बुतों की पूजा करो, आपको कुफर के रास्ते पे नहीं ले जाता है, कल्चरल अटैक के जरिए से आपसे गुनाह करवा रहा, इस आपको इस्लाम के अगेंस्ट कर रहा है। उसमें क्या आता है? उसमें ये आज का मीडिया भी है, स्कूल और कॉलेज। और ऐसे हालात में अपने घरों में बरकत लाना ज्यादा जरूरी है। अब तो खैर इस्लामी मुल्कों में भी डिश और केबल के जरिए से और सैटेलाइट के जरिए से माहौल बन रहा है, फिर भी अभी ऐसा माहौल नहीं। आप खुद अपने दिल से पूछे, वो बताएगा। तो यहां तो हिजाब ज्यादा जरूरी, नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ हिजाब बट ऑल्सो फॉर द सेक ऑफ किबला। घरों में बरकत लाना है, यानी घरों को किबला बनाना। और हिजाब किसे कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हिजाब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिजाब? व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ हिजाब? बरादर हुसैन अब्दुल्ला ने 17 ईयर्स की एक गर्ल का वाकया कल बताया था, आज उसको थोड़ा सा रिपीट किया। लेकिन व्हाट, हाँ, वो है हिजाब। ये हिजाब नहीं है कि सेंटर में आ रहे हैं तो बुर्का पहना और अबा पहनी और कोट स्कार्फ पहना, लेकिन यही यूनिवर्सिटी गई, यही लड़की शॉपिंग मॉल में गई, यही लड़की किसी बर्थडे पार्टी में गई, यही लड़की अपनी कम्युनिटी की किसी शादी में गई। आदमी अपनी आंखें बंद कर ले, जबरदस्ती वो अलग बात, लेकिन हिजाब मीन्स वो हिजाब जो अभी ब्रदर हुसैन अब्दुल्ला के लेक्चर में एक लोहार का वाकया था ना, उसने कहा मुझे ऐसी जगह ले चलो जहां कोई देखने वाला ना हो। तो अल्लाह तो था ना, हिजाब अल्लाह के लिए किया जाता, शौहर के लिए नहीं होता, वालिदैन के लिए नहीं होता, कम्युनिटी के लिए नहीं होता, किसी मर्जी के लिए नहीं होता। तो जो हमारी बच्चियां करती हैं कि यूनिवर्सिटी जाती हैं तो वहां जाके एक पर्स लेके जाती हैं जिसमें स्कार्फ उतार के रख लेती हैं। क्या घर में अल्लाह है और वहां पे अल्लाह नहीं है? यानी ये उनको बताना है। भाई पेरेंट्स, मुझे मालूम है यहां पेरेंट्स भी मजबूर, मैं पेरेंट्स को कंडेम नहीं कर रहा हूं,
मैं ओवरऑल कम्युनिटी का प्रॉब्लम बता रहा हूं। इवन हिजाब में यह भी आ जाता है कि आप अपने घर के किसी ऐसे कमरे में अपनी लेडीज की पिक्चर फोटो नहीं लगा सकते जिसमें विदाउट हिजाब हो और वहां पे नामहरम आते हो। नामहरम की फोटो देखना हराम है अगर उसको पहचानता हो। हाँ, फुल हिजाब हो तो अलग बात, लेकिन वो भी जरूरत क्या। खैर, ये एक बात उधर चली जाएगी। सानिया ज़हरा की सीरत के हवाले से जो बात थी कि चेंज किया पूरे एटमॉस्फेयर को, तो चेंज का वन ऑफ द रीजन ये था कि देखिए घर कितना स्ट्रांग था। अहले बैत के घराने में आपको कहीं पे जरा सी वीकनेस नजर नहीं आएगी। ये हमारी वेस्ट में रह के असल ड्यूटी तो वो थी कि उनको चेंज करो। उनको क्या चेंज करोगे, पहले अपने बेटे और बेटी को चेंज करो। और स्पेशली हिजाब, देयर शुड बी नो कंप्रोमाइज ऑन हिजाब। यानी कम्युनिटी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि किसी ऐसी गैदरिंग में नहीं जाएंगे, बाइकाट करेंगे जहां विदाउट हिजाब औरतों को आने की रिजा मिल रही। मुझे मालूम है कि इस वक्त उल्टा हो रहा है। विदाउट हिजाब फैमिलीज इतनी स्ट्रांग हैं। अच्छा, और ये भी एक ट्रेजेडी कि जिनके पास ज्यादा पैसा या ताकत होती है उन्हीं के घर की औरतें विदाउट हिजाब होती, तो वो अपने पैसे की वजह से और अपनी ताकत की वजह से उल्टा इन लोगों का बाइकाट करा देंगी। भाई, मेरे ऊपर जो कराची की एक बहुत ही मशहूर इमाम बारगाह में 18 साल बैन लगा, वो इसी वजह से लगा। अच्छा, जरा मैं अनएक्सपीरियंस भी था। मुझे बहुत बड़ी जमात में कुछ नहीं थे, लेकिन हर जमात में कुछ किंग मेकर होते हैं जो कुछ नहीं होते और सब कुछ होते हैं। किंग मेकर थे क्योंकि बिलियनर थे और उनकी वाइफ का इंतकाल हो गया। मुझे क्या पता कि कैसी थी। लोग का मजलिस पढ़ दिए, बिल्कुल पढ़ दूंगा। और मजलिस एक जमाने में तो मैं पढ़ता ही खाली कब्र के मौजू पर था। याम अज़ा की मजलिस भी उसी में पढ़ता था। तो ये तो ईसाल सवाब की मजलिस है, जियारत की। जब औरत की मौत पे मजलिस हो तो आप खुद बताइए टॉपिक क्या होगा। शहजादी फातिमा। और जब शहजादी फातिमा का जिक्र आएगा तो पहली क्या बात आएगी, हिजाब। तो मैंने वाकयात पढ़ दिए, बेहिजाब औरत को कितना अजाब मिलता। पता चला ये मरने वाली बेहिजाब औरत थी। अच्छा, कुछ तो ऐसा होता है कि खुद वो आदमी, कुछ होता है कान भरने वाले चमचे जिन्हें हम उर्दू में कहते हैं, उन्होंने जाके लगाए। पता है वो जो आपका एक मुखालिफ है ना, उसने मौलाना को ये फीट किया होगा कि ये सब पढ़ देना। या आपकी बीवी के बारे में पढ़ा के जो कोड़े पढ़ रहे थे कब्र में, वो शाम वाली औरत का नहीं, वो आपकी बीवी की बात हो रही थी। वो जो मौलाना सांप से कटवा रहे थे वो आपकी बीवी को कटवा रहे थे। कटवाना सांप और बिच्छू मसला नहीं है, मसला है पैसे वाले की इंसल्ट। 18 साल बैन लगा मुझे। ठीक है, आज क्या है, आज सबसे ज्यादा मेरी डिमांड उसी इमामबाड़े में। वहीं पे लोग इतना प्रेशर डालते हैं, इतना प्रेशर डालते हैं, सबसे ज्यादा पब्लिक भी वहीं पे आती। तो चेंज होता है माहौल। लेकिन मैंने कहा भाई मैं क्या करूं, अब तो एक ही तरीका है, जब कोई आए अपने मरने वाले के लिए मजलिस पढ़वाने, मैं कहूं एक लिस्ट लेकर आइए आपका मरने वाला कितने गुनाह करता था, ताकि वो मैं मजलिस में ना पढ़ूं। वरना मुझे क्या पता मरने वाला क्या गुनाह करके गया। लेकिन बात क्या हो रही है, ये लोग इतने स्ट्रांग होते हैं कि आलिम और जाकिर को मिंबर पे जाने से रोक देते हैं, जिसकी कुछ रिस्पेक्ट तो है ना माशरे में। आपकी क्या हैसियत, अगर आप मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के। तो मुझे मालूम है कि जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं आप कहेंगे उल्टा हमारे खिलाफ होगा। अगर हम मना कर दें हम नहीं जाएंगे पैसे वाले की बेटी की शादी में क्योंकि बेहिजाब है, तो हमारा बाइकाट हो जाएगा, हम कम्युनिटी से निकाल दिए जाएंगे। मगर वो प्रॉब्लम अपनी जगह, इसको सॉल्व करना, आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इतना ताकतवर बनाना। यजीद ने सानिया ज़हरा को, सैयद सज्जाद को कैदी बनाया, आखिर में वही रिहा करने पे आजाद हुआ कि नहीं, जो कल मैंने मजलिस पढ़ी थी। और याद रखिए मेरिकल नहीं था, करबला में तो एक पाबंदी हुसैन ने अपने आप पे लगा ली थी, ज़ैनब ने मेरिकल दिखाना ही नहीं। विदाउट मेरिकल करबला के जिहाद को आगे बढ़ाना, क्यों, ताकि करबला हमारे और आपके लिए गाइडलाइन बने। मेरिकल वाला वाकया हमारे लिए गाइडलाइन ही नहीं है। हम नहीं जा सकते फिरौन के दरबार में, क्योंकि हमारे पास मूसा की तरह कोई ऐसी स्टिक नहीं है जो सांप बन जाए। लेकिन ये तो हम कर सकते हैं, इजलू बुयूतकुम क़िबला। तो करबला खुद इस बात का मैसेज है कि देयर शुड बी नो कंप्रोमाइज ऑन हिजाब। आज अगर आप कमजोर हैं, ठीक है, अपनी कमजोरी महसूस करके
जो टेक्निक है वो जरा चेंज कीजिए, लेकिन जहन में रहे। और खास तौर पर मुझे अपनी लेडीज से कहना है, वो इस हिजाब की अहमियत को कम ना समझें। एक छोटी सी बात आज करता हूं, बाकी ये बात कल जाएगी। सानिया ज़हरा की सीरत कल शुरू हुई थी, उसी के कॉन्टेक्स्ट में आज की मजलिस भी हुई। कल डायरेक्ट शहजादी का बयान था, आज उनके मिशन का बयान, और ये चीज कल जाके कंप्लीट होगी। लेकिन ये एक जुमला बहुत एहतियात से सुनी, और इसके बाद वाक़ान देखिए बरादर हसनैन अब्दुल्ला ने बार बार रेफरेंस दिया 79 के इस्लामिक रेवोल्यूशन, जो उनकी मेमोरी में अब तक फ्रेश है, वहीं से उनकी मेमोरी शुरू होती है और उसके इफेक्ट्स और इम्पैक्ट। 79 में दुनिया फिर भी बहुत बैकवर्ड थी। अब वाकया सुनिए, वो ये है कि जब 79 का रेवोल्यूशन आया, उस वक्त यकीनन पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान थे उन पे इसका इफेक्ट तो हुआ। नॉन मुस्लिम भी चेंज हुए। खुद इसी इंग्लैंड में कितनी चेंज आई है। 79 से पहले लंदन में आजादारी होती थी वो क्या थी, और आफ्टर 79 क्या थी। लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। मैं अपने असल टॉपिक से रिलेटेड एक बात कहता हूं। अब जब सारी दुनिया पे रेवोल्यूशन के इफेक्ट्स पहुंचे, इंपैक्ट हुआ, असरात हुए, तो हर जगह से डेलीगेशन ईरान आने लगे ताकि देखें कि ये इतना सक्सेसफुल रिवोल्यूशन कैसे आ गया। शाह ईरान, हाउ स्ट्रॉन्ग ही वॉज बिकॉज ऑफ द बैकिंग ऑफ यूएस। वो अपने आप को फिरौन की तरह उस रीजन का खुदा समझ रहा था, इतना स्ट्रॉन्ग, और किस तरह से वो मिनट्स के अंदर डिसॉल्व होकर रह गया, जैसा फिरौन दरिया में डूब के खत्म हो गया। उर्दू का एक लफ्ज है कि फिरौन मिस्री था इसलिए पानी में घुल के खत्म हो गया। इसी तरह से शाह ईरान विद इन सेकेंड्स, अगर इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट और भी मैसेज है, लेकिन वो शायद मैं शब अरबईन पढ़ूंगा, वो आजादारी से रिलेटेड। लेकिन अब लोग आने लगे। शाह ईरान, यूरोप में रहने वाले और नॉर्थ अमेरिका वाले तो बहुत ही ज्यादा उसको स्ट्रॉन्ग समझते थे। अच्छा, अब ये डेलीगेशन जब आने लगे तो अब इमाम खुमैनी, बहरहाल इमाम खुमैनी थे, इस 80 साल के बूढ़े का विजन कहां तक ये फ्यूचर में देख रहे थे। उन्होंने, अब सब डेलीगेशन उनसे आते हैं, उनके पास तो टाइम भी कम है, मुलाकात करते हैं, हाथ मिलाते हैं, चले जाते हैं। उन्होंने ये जो डेलीगेशन जब आते हैं तो हर एक का एक प्रोटोकॉल ऑफिसर अपॉइंट होता है, उनको बुलाया, कहा कि ये आने वालों का स्टाइल बता रहा कि ये समझ रहे हैं, दे आर थिंकिंग कि हमारा रेवोल्यूशन भाई जैसे बिजली का बटन है ना, हमने ऑन ऑफ किया और आ गया। रेवोल्यूशन लाना बच्चों का एक खेल है। हर एक यही कह रहा है ना कि जो आपने किया अब हम अपनी कंट्री में जाके यही करेंगे, ये तो वाजिब है, ये करो। लेकिन अगर ये समझ के जा रहे हो कि इट इज सो सिंपल, जाके बटन दबाएंगे और रेवोल्यूशन आ जाएगा, तो वो और नुकसान पहुंचाओगे इस्लाम को। तो प्रोटोकॉल ऑफिसर से कहा कि आप जितने डेलीगेशन आए उन सबको ईरान के कब्रिस्तान भी दिखाओ और ये बताओ कि हमने कितना सेक्रीफाइस दिया है तो ये रेवोल्यूशन आया। ये ओवरनाइट बटन दबा के नहीं आया। चुनाचे तेहरान का कब्रिस्तान बहिश्ते ज़हरा, और फिर कुम में बहिश्ते रजा, और हर शहर में कब्रिस्तान है। बहिश्ते ज़हरा जैसा तेहरान में है, जो लोग जियारत करके आए हैं। जैसे बरादर हसनैन अब्दुल्ला ने 2 दिन पहले कहा कि वो गए थे 91 के ट्रिप पे, तो वहां जियारत कराते हैं। लेकिन कितने लोग इंडिया और पाकिस्तान से जो हमारी औरतें जाती हैं, क्योंकि ईरान में एक ये भी ट्रेडिशन है कि कब्र पर मरने वाले के फोटो लगाया जाता। हमारी औरतें जाती हैं, मेरी अपनी फैमिली की औरतें भी गई, कोई उनसे रिश्ता नहीं, कोई रिलेशन नहीं, पता भी नहीं कौन है ये। लेकिन एक मर्तबा कब्रिस्तान में जाके फूट फूट के रोने लगती। औरत बहरहाल माँ तो होती है ना, 18-18, 16-16, 20-20 साल के जवान। अरे 1, 2, 5, 7 नहीं है, 1-1 मिलियन, 2-2 मिलियन, पूरी एक यंग जनरेशन। यहां की यंग जनरेशन को आप डिस्को से नहीं हटा सकते, म्यूजिक से नहीं हटा सकते। और वहां वो अल्लाह के नाम पे अपनी जान दे रहे। वो कोई स्पेशल, किसी स्पेशल मिट्टी या क्ले से नहीं बने हुए, वो आसमान से नहीं उतरे। वो जस्ट लाइक अवर सेल्फ शिया इस्नाशरी है, उनके सामने भी करबला है, हमारे सामने भी करबला।
हमारी करबला हमको माइकल जैक्सन पे ले जाती है, उनकी करबला उनको शहादत पे लेके गई। वही है इसलिए ग्रुप था जो हमारे बच्चों का होता। रोने लगती हैं औरतें हमारी इंडिया पाकिस्तान की, फूट फूट के रोने लगती। बहरहाल किसी माँ के तो बेटे हैं ना, 16 साल 12 साल 18 साल 20 साल कितनी कुर्बानी दी है ईरान की कौम ने। और एक नहीं, मैंने कहा ईरान के हर टाउन में कब्रिस्तान, शाह के खिलाफ पूरी कौम ने मिलकर जिहाद किया था। हमारे पास तो टाइम कम होता तो हम तेहरान जाते, कुम जाते, मशहद जाते बस, लेकिन ईरान के हर टाउन के अंदर ऐसे कब्रिस्तान। इमाम खुमैनी ने कहा ये इनको दिखाओ ताकि इनको पता चले कि रेवोल्यूशन बटन दबा के ओवरनाइट नहीं आता है, उसके लिए इतने ग्रेव यार्ड नौजवानों से भरना होते हैं, एक एक पेरेंट को 7-7 बेटों की कुर्बानी देना होता है।